Hi, I am Meenu Gupta, your educator and guide for various competitive examinations after your engineering, after your BTech, exams like GATE, General Aptitude Test in Engineering, ESE examination which is taken by UPSC, IRMS examination as well as AJE state level examination. In this video, I am going to tell you about the Indian Oil, that is IOCL, about the salary, about the perks, and all other benefits that you are going to get after you are going to get selected in Indian Oil as an engineer. For getting into Indian Oil, before let me tell you about Indian Oil. Indian Oil is central public sector undertaking under the ownership of Ministry Petroleum and Natural Gas. Indian Oil ranked 142 on the global Fortune 500 list of the world's companies, and also it is the largest government owned oil producer in India. So after doing your BTech with various streams, it is the dream of every candidate to work with Indian Oil. So if you want to work with Indian Oil, you have to give the exam which is called as General Aptitude Test in Engineering, which is specifically called as GATE examination. If you are a mechanical engineer or from civil or from computer science, electronics, EE, Indian Oil gives the vacancies of all the branches, but here I am telling you specifically about the mechanical branch. If you want to go into the Indian Oil, then you have to secure top rank in GATE examination. Almost you have to be in top 200 and 300 all India rank to ensure your entry in IOCL. So again, I am going to tell you the salary that you are going to enjoy once you get in IOCL, also all the perks and allowances that you are going to get. I have got the salary slip of many officers that are already working there. I have more than 5 to 10 salary slips, also salary slips with 60,000 grade pay, salary slip with 50,000 grade pay. Let me tell you, before 2017, Indian Oil used to recruit with basic pay scale of 60,000, but now presently Indian Oil is recruiting with pay scale of uh, 50,000. So I have all the salary slips. With the salary slips, I am going to tell you that what is the actual salary of you are going to get when you are going to get a job in Indian Oil. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि सरकारी नौकरी जो कि इंडियन ऑयल में आप लोगों को मिलने वाली है उसमें आपको कैसी सैलरी मिलेगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है पे स्लिप अक्टूबर 2022 की, एंड यहाँ पर ये ग्रेड ए ऑफिसर हैं उनकी सैलरी स्लिप है विच आई हैव गॉट। यहाँ पे देखो पे स्केल जो है वो आपकी 50,000, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्रेजेंटली जो इंडियन ऑयल रिक्रूट कर रही है वो 50,000 बेसिक पे आपको रिक्रूटमेंट यहाँ पर मिलेगा। उसके साथ साथ यू कैन सी यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस आपको 13,500 रुपीज। उसके अलावा ये छोटे छोटे प्रोफेशनल यूपीडी अलाउंस, टीम रीइंबर्समेंट 1,000 3,000, वॉशिंग अलाउंस आपको मिल रहा है, एससीओ पेमेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, बहुत सारे पेमेंट एंड वेरिएबल डीए मैं ये आई मीन टू से जो बड़ा बड़ा पेमेंट है मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहती हूँ। वेरिएबल डीए जो है आपका वो यहाँ पे देखो डीए रेट जो प्रेजेंटली चल रहा है वो 34.8% यहाँ पे चल रहा है, उसके हिसाब से 17,400 रुपीज आपका डीए बन रहा है। इसके साथ साथ देखो 8,153 कन्वेंस अलाउंस, ये सब कुछ मिला करके टोटल अर्निंग जो आपकी बन रही है वो 1,25,817 बन रही है। अब डिडक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला डिडक्शन आपका प्रोविडेंट फंड
पीएफ जिसे हम कहते हैं, पीएफ तो एक ऐसा डिडक्शन है जो फाइनली आपको ही मिलना है। उसके साथ साथ अगर आपकी सैलरी 1,25,000 बन रही है तो इनकम टैक्स तो बनना बनता है। तो इनकम टैक्स है आपका 9,601। ये तत्काल सहायता योजना 560 एंड 1705, ये एक्चुअली तत्काल सहायता योजना होती है इफ अनलकली देयर इज सम मिस हैपनिंग, तो तत्काल आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको ये वाली सहायता योजना दिया जाता है। ठीक है। SABF, दिस इज बेसिकली अ फंड दैट इज मैनेज्ड बाय IOCL एम्प्लॉइज। दिस इज सुपर एनुएशन बेनिवोलेंट फंड। ये एनपीएफ की तरह ही है जिसमें कि आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन ये फंड ऐसा है जो कंपनी ही मैनेज करती है। फंड जो आईओसीएल के एम्प्लॉय ही मैनेज करते हैं, तो 1348। उसके साथ साथ वीपीएफ, वीपीएफ एक तरीके का वॉलेंटरी पीएफ होता है जो आदमी खुद ही कटवाता है। अगर आप चाहो तो ये 4000 कट करवा सकते हो, डिडक्ट करवा सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं भी हो सकता है। तो ये वॉलेंटरी होता है आपकी सुविधा के अनुसार। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे 25,000 है एंड टेक होम पे आपकी 1,04,60 यहाँ पर बन करके आ रही है। ये प्ले स्लिप है अक्टूबर की 2022 की, बहुत ही रीसेंट है। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी है दिसंबर 2022 एंड प्रिसाइजली 24 दिसंबर 2022 एंड ये जो आपका है पे स्लिप वो अक्टूबर 2022 की है। आगे बढ़ते हैं यार। आप देखो ये जो आपको सैलरी स्लिप दिख रही है, ये नवंबर 2017 की सैलरी स्लिप है और यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 60,000 वाली है। सारे के सारे यहाँ पे आप अलाउंसेस देख सकते हो क्या क्या आपको मिल रहा है। तो जो टोटल सैलरी आपकी अर्निंग बन रही है वो 77,000 बन रही है। पीएफ जो डिडक्ट हुआ, तत्काल सहायता, इनकम टैक्स, एसएबीएफ, ऑफिसर्स एसोसिएशन पॉइंट एडजस्टमेंट, जो टोटल डिडक्शन है वो 10,000 है एंड टेक होम पे है वो 66,980 रुपीज आपकी बन रही है। इसी एम्प्लॉय की इंजीनियरिंग ऑफिसर जो यहाँ पे हैं उन्हीं की एक साल बाद की, अच्छा ये दोबारा रिपीट है, एक साल बाद नवंबर 2018 की। देखो मैंने उनसे नवंबर 2017 की पे स्लिप मांगी, उसके बाद नवंबर 2018 की, और यहाँ पर सीधा सीधा देखो टोटल अर्निंग एक साल बाद उसी मंथ पे जो टोटल अर्निंग है वो 83,883 रुपीज है। उसी तरीके से मैंने फिर उनसे अक्टूबर 2019 की भी मांगी थी, कहीं लगी होगी, जस्ट अ मिनट, नहीं लगी है, कोई बात नहीं, अक्टूबर 2020 की है। पे स्केल बेसिक पे देखो 63,000 हो गया है और इसके पहले यार एक साल बाद भी 60,000 है, पर 2020 में जो आपका बेसिक पे है वो 63,660 हो गया है। बहुत सारे यहाँ पे रीइंबर्समेंट है, एक बार आप देख लेना भाई, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या क्या हो रहा है। टोटल अर्निंग 81 है, डिडक्शन 32,000 है। ये सब कुछ मिला जुला करके आपकी जो टेक होम सैलरी है उसको माइनस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद जून 2021 की है, जब आप बेसिक जो पे है वो 66,751 डियर, एक्चुअली आपका हर ईयर 3,000 रुपीज ऐड होते हैं बेसिक पे। जैसे आपने अगर अभी 50,000 बेसिक पे यहाँ पर आए हैं तो अगले साल आपको 53 हो जाएगा, फिर 3,000 हर साल आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी दैट टोटल अर्निंग यहाँ पे 99,980। देखो ये बहुत सारी सैलरी स्लिप है जो मैंने यहाँ पर एक ही इंजीनियर की मांगी है गैप्स में। अब 2022 की भी देख लो, 72,000 बेसिक पे आपकी जो सैलरी है वो 1,13,618। अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कटा है, प्रोविडेंट फंड पर कटा है, इनकम टैक्स, एचआर जो रिकवरी किया गया है, तत्काल सहायता योजना, सोसाइटी में मेंबरशिप, सोसाइटी मेंबरशिप वो भी आपका वॉलेंटरी होता है, अगर आप चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो। 2,000 यहाँ पे इन्होंने करवा रखा है। इन्होंने यहाँ पे लोन भी ले रखा है तो 4,330 रुपीज सोसाइटी लोन है। उसके बाद व्हीकल लोन भी ले रखा है तो उसकी इंस्टॉलमेंट 4,000 कटी है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन 1,900 रुपीज एंड डियर यहाँ पे 44,378 टोटल डिडक्शंस हैं। सो जो आपका टेक अवे होगा वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने आई थिंक व्हीकल का लोन ले रखा है तो ये बैलेंस अमाउंट यहाँ पे दे रखा है। बैलेंस अमाउंट यहाँ पे दे रखा है कि भाई कितना कितना लग गया है, कितना इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर
दिख जाएगी। अब इतनी सारी सैलरी स्लिप है तो नीडलेस तो मैं इतनी सारी सैलरी स्लिप को बार बार आपको रिपीट कर करके बताऊं, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी वेरी हैंडसम सैलरी इन इंडियन ऑयल। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो, अगर आप 50,000 ग्रेड पे में हो तो फिर आपको लगभग 60 to 70,000 आपको लगभग इन हैंड सैलरी मिलेगी। ओके, सो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या अलाउंसेस एंड पर्क्स होते हैं इंडियन ऑयल में जब आप एज एन इंजीनियर या ग्रेड ए ऑफिसर यहाँ पर रिक्रूट होते हो। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो सबको सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा अलाउंसेस एंड पर्क्स यहाँ पर मिलते हैं आईओसीएल में, जिसमें कि आप मतलब एक बहुत ही अच्छी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैपटॉप मिलता है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, 55 to 60,000 रुपीज। दैट इंक्रीजेज विद द ग्रेड। जैसे कि आप लोगों को अब 50,000 ग्रेड पे में रिक्रूटमेंट हो रहा है तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 55 to 60 के आपको लैपटॉप का मिलेगा इन एवरी 3 ईयर्स। मैं बता दूं 3 ईयर्स में ये आपको मिलता है। जैसे जैसे आपका ग्रेड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो लैपटॉप का अमाउंट है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 60,000 ग्रेड पे में जाओगे तो आपको 70,000 मिलने लगेगा अकॉर्डिंगली। मैं आपको बता दूं रिसेंटली अभी इंक्रीज भी हुआ है जो अलाउंसेस हैं वो आईओसी में। नेक्स्ट है आपको मोबाइल अलाउंसेस मिलते हैं एवरी 2 ईयर्स में। 15 के, अभी जो 50,000 ग्रेड पे में आपने रिक्रूटमेंट किया है वहाँ पे 15 के से 20 के मिलेगा। जैसे ही आपका बढ़ता जाएगा, फॉर एग्जांपल अभी ग्रेड बी में 40,000 मिलता है, तो जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको अलाउंसेस भी बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट जो अलाउंस यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपको कार लोन। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कार फ्री में मिलती है, बट ऐसा नहीं है। कार लोन लेना होता है 5 लाख तक। जो कार लोन आपको मिलता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट में कंपनी की तरफ से मिल जाता है। इससे ज़्यादा का भी प्रावधान है, वो देखना होगा आपको, भाई 10 लाख तक का भी होता है। मैं आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग में हैं और आपको कंपनी के काम से बाहर जाना होता है फ्रॉम योर कार, तो आपको वहाँ पे कार का मंथली मेंटेनेंस भी मिलता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो हमने लोन लिया हुआ था कार का, उसका 4,000 पर मंथ की ईएमआई मिलती थी। ईएमआई जो हमने लगा रखी थी, उसके बाद जो कंपनी से हमें मेंटेनेंस मिलता था वो 10,000 का मिलता था। तो एनी हाउ 6,000 का अभी भी पॉजिटिव में आप रहते हो। तो कार ले लेना ही बेनिफिशियल होता है वंस यू ज्वाइन आईओसीएल। हाँ, कई ऐसी जॉब्स हैं, आई मीन कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये 10,000 आपको मेंटेनेंस चार्ज नहीं मिलते हैं। ये मेंटेनेंस चार्ज मैं आपको बता दूं, जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा आना जाना होता है जो कंपनी की तरफ से, वो लोगों को ये 10,000 मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारी कार में 3 साल के अंदर 1 लाख किलोमीटर चली थी, वो कंपनी के काम से ही चली थी। तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती हैं, वो फिर आपको सर्विसिंग भी करवानी होती है। एनी हाउ यू आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो जब भी आप आईओसी ज्वाइन करें तो आप कार खरीद ही लें, बिकॉज वही बेहतर है। वो आपको एक कार भी हो जाएगी और वो आपको पॉजिटिव भी रखेगी। उसके साथ साथ जब आप अपनी कार में ट्रैवल करते हो तो आपको ड्राइवर के लिए अलाउंसेस, उसके साथ साथ आई बिलीव 12 to 13 रुपीज़ पर किलोमीटर कंपनी की तरफ से मिलता है। या उसके हिसाब से अगर आप देखोगे जो एक्चुअल चार्ज आता है वो बहुत ही कम आता है, बहुत ज़्यादा इसमें सेविंग्स भी हो जाती हैं। नेक्स्ट आपको होम लोन मिलता है 40 लाख से लेके 50 लाख तक, बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट में फ्रॉम द कंपनी। यह भी आप आराम से ले सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये होम लोन होता है, मतलब घर बनवाने के लिए लोन होता है। अगर कल को आपको ज़मीन खरीदनी है तो शायद उसके लिए ये लोन नहीं होता है। हाँ, ज़मीन आपके पास है, उसके बाद आप उसमें घर बनवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, उसके लिए 40 लाख का लोन आपको कंपनी से, ये 50 लाख तक भी हो सकता है, मिल जाता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में। देन दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्नीचर अलाउंस आपको हर 4 साल में मिलता है 1.5 लाख का, जिसमें कि आप टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, बेडिंग,
वाटर प्यूरिफायर, जितने भी आपके फर्नीचर होता है घर पे रहने के लिए, वो सारी चीज़ें आप इस 1.5 लाख में खरीद सकते हैं। और इसका मेच्योरिटी होता है, मेच्योरिटी इन द सेंस कि अगर आपने कुछ सेट ऑफ अमाउंट आज खर्च किए हैं तो वो 4 साल बाद मेच्योर हो जाएगा और आपके वो क्रेडिट में ऐड होता जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग फिर से नई चीज़ें खरीद सकते हो। तो ये अलाउंसेस से आपके सारी की सारी चीज़ें जो घर पे होती हैं वो आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके फ्लाइट टिकट्स मिलता है फॉर ऑफिशियल टूर। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एवरी 2 ईयर में आपको हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है, आई बिलीव 1 लाख का। ठीक है, 1 से 1.5 लाख के आसपास होता है ये, हर 2 साल में होता है। आप कहीं भी हॉलीडे में जाना चाहते हैं, गोवा, शिमला, मनाली, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, ये अलाउंस भी कंपनी की तरफ से मिलता है। और डेफिनेटली ये आपको बहुत ही अच्छा टाइम देता है, और जब खुद के पैसे नहीं लग रहे होते तो घूमने में और भी मज़ा आता है। तो ये 1 लाख से 1.5 लाख तक आपका यहाँ पर अलाउंस होता है, हॉलीडे अलाउंस जिसे कंपनी बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्री मेडिकल। जो है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डियर। देखो यहाँ पे मेडिकल में बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडियन ऑयल इज इन टॉप, जहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। कैपिंग नहीं है इसका मतलब आपका जो भी मेडिकल के बिल्स आते हैं, फ्री मेडिकल आपके खुद के लिए, आपके स्पाउसेस के लिए एंड आपके डिपेंडेंट्स के लिए। मतलब कि आपके, अगर आप मैन हैं तो आपकी वाइफ, बच्चे और आपके मदर फादर जो भी डिपेंडेंट हैं उनके लिए फ्री मेडिकल होता है, उसमें कोई कैपिंग नहीं होती। मैं आपको बता दूं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी जगह पे आप इंडियन ऑयल में पोस्टेड रहेंगे, उस जगह के जो टॉप हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल्स को इंडियन ऑयल नॉमिनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं तो दिल्ली में जितने भी टॉप हॉस्पिटल्स हैं, लाइक फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया, ये सारे नॉमिनेटेड हैं, है ना। ये प्राइवेट में सबसे टॉप में हॉस्पिटल्स आते हैं। और अगर आप नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में जाते हो तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री होता है वहां पर, कोई भी मेडिकल के चार्जेस नहीं लगते हैं। यस, ऐसा अब बात ये आती है कि अगर आप नॉन नॉमिनेटेड में जाते हैं तब आपके साथ क्या होगा। तो उस केस में डियर आई थिंक 30% आपका जो टैक्सेस होते हैं वो कटते हैं, 70% कंपनी आपको रीइंबर्स कर देती है आपके मेडिकल बिल्स। तो उस केस में भी 70% खर्चा आपको उठाना पड़ता है, जिसमें कि कोई भी कैपिंग नहीं है। तो इंडियन ऑयल सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है मेडिकल में अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा टू से टेंशन फ्री हो जाते हैं लोग, और बहुत ही अच्छी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। देन मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड का भी जो बिल होता है आपका, वो भी आप एनुअली 15,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वाईफाई लगाया है, मोबाइल लिया है, तो हर महीने लगभग 1,000-1,200 रुपये आप आराम से खर्च कर सकते हैं और वो रीइंबर्स हो जाता है। तो इतने सारे अलाउंसेज है। टीएडीए भी आपको मिलता है पर डे ऑन ऑफिशियल टूल, वो तो अलग बात है क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा यहाँ पे बता देती हूँ डियर, कि अगर आपकी शिफ्ट जॉब होती है, मान लीजिए आप फील्ड ऑफिसर नहीं हैं, तो आप इनके रिफाइनरी में पोस्टेड हैं, तो वहाँ पे ओवर टाइम भी हो जाता है। अगर आप ओवर टाइम करते हो, ओटी जिसे कहते हैं, उसका भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। मैं बता दूं कि सैलरी से भी डबल लोग ओटी बना लेते हैं अपना, लेकिन ये सिर्फ वो लोग बना पाते हैं जो यहाँ पर रिफाइनरी में अंदर पोस्टेड है। ठीक है, जो लोग ऑफिस जॉब में हैं या फील्ड जॉब में हैं वो लोग इतना नहीं बना पाते हैं। लेकिन हाँ, टीएडीए भी जो फील्ड वाले हैं वो भी लगभग सैलरी से ज़्यादा टीएडीए बना लेते हैं। डेली का डेली आप विजिट में जा सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे टू से इंडियन ऑयल में जॉब करने का मतलब है यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी सुपर लाइफ. So I hope that you enjoyed the video. Do subscribe to my YouTube channel, like the video if you like, share it, and yes, stay tuned. I'll be there with more beautiful and informative videos for you.